Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is unit 2. This is environment and nature, and its country for me is a story under this unit, that is by Patricia Demark. You people have learnt in this unit about the farmland, about the Joel, about who is a 13 years old boy. He loves that country land, who loves to live on a farmland. That is Joel's word. And Joel belongs to the Holland family, those who live on the Scale Mount, and they had come over there from the Ireland. They are Irish immigrant. His forefathers were from Ireland, and they had settled over there on the Scale Mount in America. And they had bought a land over there, and they had changed the land into a fertile land. They worked over there on those 256 acres. So that land was bought by his great grandfather, and the family now had been living over there on the same farmland, and they had been living working on that farm. So yesterday we were on this paragraph where we have learnt about the Joel, that he was like an apprentice. Apprentice means over here that he was like a learner, he was like a trainee. So he worked over there and he learnt a lot of new skills while working on the land, as he was very alert and watchful like a कैट. उसके फादर किसी कस्टमर के साथ बात करते हैं, तो ही वॉज देयर टू लिसन अबाउट द पीस ऑफ एडवाइजेस दैट ही यूज टू गिव टू द कस्टमर्स. जब उसके ब्रदर जो है वो वेट के साथ कंसल्ट करते हैं अबाउट द डेथ इन द हॉग हर्ड, तो तब भी उनकी बीमारी के बारे में जो भी कंसल्टेशन होती है, ही वॉज देयर टू लिसन. इसी तरह से सॉइल प्लानिंग हो रही है बिटवीन द फादर एंड द सन्स. So he was there to listen everything. So all that knowledge about the farm and about the country, he seeps into his mind, that flows into Joel's mind. हर चीज़ को वो absorb कर रहा होता है. So from this third paragraph we have to continue. Joel is the youngest of Ed and Betty Holland 6 children. अब जो Holland is the surname of the family, और जो Ed and Betty है, they are the father and mother, and उनका जो है ये सबसे छोटा बेटा है. Only he and his brother Marty 16 still live at home. अब इन 6 में से, इनके 6 बच्चों में से सिर्फ जोएल और मार्टी जो कि 16 ईयर्स ओल्ड बॉय है, वो दोनों घर पे हैं. बाकी के जो बहन भाई हैं, दे आर अवे फ्रॉम होम. जैसे उसके 2 other brothers, Bill and Terry, they came home each day to eat meals with the family. Bill and Terry rent neighboring farms. Each has his own livestock herd, and they farm their land collectively with their father. अब ये जो बिल एंड टेरी हैं, उन्होंने अपना जो नेबरिंग जो फार्म लैंड है उसको रेंट पे लिया हुआ है. घर पे खाना खाने के लिए वो डेली आते हैं, लेकिन उनका अपना लाइफ स्टॉक है, अपना फार्म है, बट ऑल ऑफ देम दे वर्क टुगेदर विद देयर फादर. So family togetherness is over there. They are connected with one another like one unit. So then the 2 other children, Kevin and Kathy, डू नॉट लिव एट होम. जो बाकी 6 में से जो 2 बाकी हैं, केविन एंड कैथी, वो भी घर पे नहीं रहते हैं, क्योंकि जो केविन है वो उसकी ग्रेजुएशन हो रही है. कहाँ से? फ्रॉम द शिकागो यूनिवर्सिटी. और ये फैमिली का 4th ग्रेजुएट होगा. इनके जो बड़े भाई हैं, बिल एंड टेरी, दे ऑल्सो गॉट द ग्रेजुएशन डिग्री, एंड कैथी, शी वॉज ऑल्सो डूइंग हर ग्रेजुएशन, एंड केविन, ही वॉज ऑल्सो गेटिंग हिज ग्रेजुएशन डिग्री. सो 4 of them, ही वॉज द 4th one फ्रॉम द फैमिली हु वॉज गेटिंग द ग्रेजुएशन डिग्री. और ये बेटी का पॉइंट ऑफ व्यू है कि वी इंसिस्ट दे ऑल गो टू द कॉलेज एंड गेट अ टेस्ट ऑफ व्हाट इट्स लाइक ऑफ द फार्म. इसकी मदर का पॉइंट ऑफ व्यू है कि भी बच्चों को बाहर जाना चाहिए, यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहिए. दे शुड गो अवे फ्रॉम द फार्म लैंड, दे शुड सी द आउटर वर्ल्ड, और उनको देखना चाहिए कि फार्म के अलावा भी जो दुनिया है वो कैसी है. लेकिन इफ़ दे वांट टू कम बैक टू फार्मिंग, दैट्स फाइन. उसका ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर वो दे वांट टू एक्सरसाइज देयर स्किल्स, their knowledge into some other field, that is fine with the family too. लेकिन अगर if they want to come back, if they know the significance of the farming while living away from the farmland, or they would come back, तो ये भी उनके लिए अच्छा है. Kathy 24 is the oldest child and the only daughter. She is now a Roman Catholic nun doing graduate degree in DePaul Law.
अब वो क्या है, जो कैथी है वो 24 इयर्स की है, सबसे बड़ी बेटी है इनकी और अकेली इकलौती बेटी है। और वो जो है शी हैज़ डिवोटेड हर लाइफ फॉर द रिलीजन, फॉर द चर्च। वो रोमन कैथलिक है और वो डिबाग से, आयोवा से जो है वो शी वॉज़ गेटिंग हर डिग्री। अपने भाइयों की तरह वो भी फॉर्मलैंड पे ही ग्रो अप हुई है और उसको मिस करती है। कैथी कॉल्ड दिस वे ड्यूरिंग हर फाइनल एग्जाम्स एंड सेड आई वुड गिव एनीथिंग टू बी प्लॉइंग इंस्टेड। मतलब उसने जब अपने फाइनल एग्ज़ाम्स में उसने फ़ोन किया घर पे, तो उसने उस वक्त भी अपनी फीलिंग्स को शेयर किया कि भी वो जो है वो अप्लाइंग के लिए शी वॉज़ रेडी टू गिव एनीथिंग। फिर as the youngest, Joel has at times had more farming teachers than he has wanted. One night, they all sat at the kitchen table listening to his dad and brothers talk about the rewards of farming. अब जोएल जो सब घर में सबसे छोटा है, उसके फार्मिंग में बहुत से टीचर्स हैं। अब he doesn't want such a lot of teachers. जैसे घर में सबसे छोटा होता है उसके लिए इंस्ट्रक्टर्स बहुत से होते हैं, उसके लिए पीस ऑफ एडवाइजेस बहुत होती हैं। बेचारा पढ़ने को बैठता है तो बहुत से उसके टीचर्स भी बैठ जाते हैं, लो मैं तुम्हें बताता हूँ। उस काम करने बैठता है तो उसको बहुत से इंस्ट्रक्शंस मिलना शुरू हो जाती है, इसको ऐसे करो वैसे करो। सो इट वाज हैपनिंग विद जोएल, ही वाज द यंगेस्ट वन इन द फैमिली। तो एक दिन सब इकट्ठे किचन टेबल पे बैठे हुए थे, आपस में डिस्कस कर रहे थे कि भी फार्मिंग के क्या क्या रिवॉर्ड्स हैं, इनके क्या क्या फ़ायदे हैं। तो जो बिल है उसने कहा कि ये एक इंडिपेंडेंट लाइफ है, इट्स गुड इंडिपेंडेंट लाइफ, यू आर योर ओन बॉस। उसका ये ख्याल है कि भी अपने काम में आप अपने बॉस खुद होते हैं, आप अपने मालिक खुद होते हैं, अपनी मर्ज़ी से काम कर रहे होते हैं। जबकि जोएल जो है वो ग्रिन करता है, मतलब ऐसे जैसे तो मस्खराना किस्म की हंसी हंसता है और कहता है कि नो इट्स नॉट लाइक दैट, कि आप यू आर बॉस ऑफ योर ओन सेल्फ, मेरे तो बहुत से बॉस हैं। व्हेन फादर आस्क्ड दैट हु, तो वो पॉइंट आउट करता है टू एवरीवन अराउंड द टेबल कि दे ऑल लाफ्ड। मतलब उसको ऐसे करता है कि भाई मुझे तो यहाँ पे बहुत से बताने वाले, बहुत से टीचर्स हैं, बहुत से बॉस हैं, तो ये तो सारे के सारे मेरे बॉस हैं। तो उसकी इस बात पे एवरीबडी लाफ्ड। Joel used to be largely at somebody's side, watching and listening, lending a hand or going on the run for a tractor or forgotten to, क्योंकि जब ये फार्मलैंड पे काम कर रहे होते हैं तो ये किसी न किसी के साथ काम कर रहा होता है। और जब किसी के साथ काम करता है उस वक्त उनको देख भी रहा होता है, सुन भी रहा होता है, उनको हेल्पिंग हैंड भी दे रहा होता है। और बाज़ का ट्रैक्टर के लिए भागता है, बाज़ का कोई चीज़ जो फील्ड में भूल जाते हैं उसको लेकर आने के लिए भाग रहा होता है। लेकिन ही टुक द ओकेजनल बॉसिंग, ही गो इन स्ट्राइड। और जब कभी वो अकेला जाता है तो तब वो अपना बॉस खुद होता है। नो इज़ बिजी विद हिज वर्क दैट ही इज़ नो लॉन्गर अवेलेबल टू एवरीबडी इज़ गूफर। गूफर मीन्स दैट ही इज़ नॉट द वर्कर ऑफ एनी वन। वो किसी के लिए काम नहीं करता है। जब वो खुद ओकेजनली बॉसिंग करता है तो फिर इतना अपने काम में बिजी होता है कि ही डजंट लिसन एनी वन एंड ही इज़ नो बडी इज़ गूफर। If I had just one word to describe Joel, it would be enthusiasm. मदर का ये पॉइंट ऑफ व्यू है, सेज बेटी। बेटी का ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर जोएल को एक लफ्ज़ में डिस्क्राइब किया जा सकता हो तो वो enthusiasm का वर्ड जो है suitable for him, that he is so energetic and devoted towards his work that he put all his energies into that work। और कहते हैं ये यूथफुल एनर्जी इनडिस्क्रिमिनेटली यूज़ करता है, बग़ैर किसी तफरीक के, बग़ैर किसी थकन के। ही यूज़ टू वर्क ऑन द फार्मलैंड। मतलब उसने इस यहाँ पे डिस्क्राइब किया कि बी ऑन वन समर डे उसने इतना काम किया है। ही जम्प 15 फेंसेस, ड्रोव फ्रॉम फार्म मशीनरी 25 miles, fed 320 animals, opened closed the gates, walked and ran about 8 miles, jumped on and off the tractor 26 times, lifted 900 pounds of grain, shoveled 4,000 pounds, ate about 2,600 calories। के एक दिन में उसने इतना काम करके कि 320 एनिमल्स को फीड किया है, 25 माइल्स मशीनरी चलाई है, 15 जो है वो फेंसेस को जंप किया है। लॉट ऑफ वर्क ही हैड डन। और फिर मतलब 900 पाउंड्स ऑफ ग्रेन उसने लिफ्ट किया है और जो है 4,000 पाउंड्स को शोल किया है, उसको उल्टा पुल्टा किया है। और फिर उसके साथ ही हैड ईटन अ गुड फूड एज वेल, जो कि एक 13 years old बॉय से इतनी एनर्जी एक्सपेक्टेड नहीं होती है। सो मदर सेड दैट कि भी अगर हम उसको एंथुजिज्म की टर्म में डिफ़ाइन करें तो दैट वुड बी फाइन। फिर वीकेंड्स एंड ड्यूरिंग द समर जोएल वर्क्स आउटडोर्स एनीवेयर फ्रॉम 8 to 15 hours a day। द ओनली टाइम ही माइंड्स इट इज़ ड्यूरिंग अर्ली स्प्रिंग। अच्छा, अब गर्मियों के दिनों में जब दिन लंबे होते हैं तो वो 15-15 घंटे फील्ड में काम करने के लिए रेडी होता है। और क्यों रेडी होता है? क्योंकि वीकेंड्स होते हैं, स्कूल नहीं जाना होता है, या समर वेकेशन होती है तो भी स्कूल ऑफ होता है। तो जब स्कूल ऑफ होता है तो 15-15 घंटे जो है ही इज़ रेडी टू वर्क ऑन द फार्म हाउसेस। फिर
उसने कहा कि भी हाँ, जो चीज़ उसे बुरी लगती है वो अर्ली स्प्रिंग डेज़ होते हैं। क्यों अर्ली स्प्रिंग डेज़ उसको बुरे लगते हैं? क्योंकि उन दिनों में जो स्नो मेल्ट होती है, रेन हो रही होती है, और उससे फार्म यार्ड जो होता है वो बिल्कुल सारा स्वैम्पी हो जाता है, कीचड़ हो जाता है। वहाँ पे जब चलता है तो उसके बूट को कीचड़ लग जाती है, वो हैवी हो जाते हैं। फिर उसको ये बड़ा टीडियस किस्म का चोट लगता है, बड़ा थकन वाला काम लगता है, और अपने भाई की तरह इसको भी अगलीनेस बुरी लगती है, गंद बुरा लगता है, उससे ज़्यादा बल्कि लगता है। उसके ख़्याल में जब व्हेन इट रेन्स एवरीथिंग सीम्स टू बी ऑफुल, हर चीज़ जो है वो अजीबोगरीब और मिस्टीरियस हो जाती है। Regardless of how much energy his work consumes, Joel has plenty left over for sports. अब दो के इस काम में बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम होती है। कंज्यूम मीन्स एब्जॉर्ब होती है उसकी, वट एवर द एनर्जी ही हैड ही यूज़ टू पुट इनटू हिज वर्क, लेकिन उसके बावजूद उसके पास बहुत सी एनर्जी बच जाती है फॉर द स्पोर्ट्स। जैसे आप लोगों के साथ होता है, सारा दिन कुछ ना कुछ करके, लेकिन जब खेल का टाइम आता है यू आर ऑल एनर्जेटिक अगेन। He hunts deer and traps wildlife in the fall, snowmobiles in the winter, spring brings softball and basketball games, and summer provides weather for water skiing and fishing. Nearly all his sports are played outdoors. आउटडोर गेम्स उसको पसंद हैं, जैसे ऑटम में उसको हंटिंग करना डियर की और वाइल्ड लाइफ की पसंद है, विंटर में उसको बर्फ़ गाड़ी चलाना पसंद है, स्प्रिंग में उसको बास्केटबॉल एंड सॉफ्टबॉल खेलना पसंद है, समर में उसको वाटर स्कीइंग और फिशिंग बहुत अच्छी लगती है। सो ऑल दीज आउटडोर गेम्स ही लव टू play. If he had to live in the city for a year, Joel says he would mostly miss the land. I would miss seeing things grow, the change of seasons. In fact, he loved nature. In fact, he loved the environment. In fact, he loved the countryside and farmland. So, अगर वो शहर में उसको रहना पड़ जाए 1 साल, तो he would miss the land. In fact, if Joel could choose country after living out here, I don't think I would ever want to be in the city. You don't have responsibilities, but you do not work as family the way you do on a farm. I would just have to be country for me. So वो अपने लिए क्या प्रेफर करता है? टू लिव ऑन अ फार्म लैंड, टू हैव अ कंट्री फॉर हिमसेल्फ। वो इस सब एनवायरनमेंट से, इस नेचर से ही लव्ड अ लॉट। और अगर उसको कंट्री साइड से या सिटी से कुछ एक चूज़ करना पड़े, ही वुड लव टू लिव ऑन अ लैंड, ऑन अ कंट्री साइड। उसका ये ख्याल है कि सिटी में आपके पास बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होती हैं, लेकिन आप इजी होते हैं, लेकिन आप फैमिली टुगेदरनेस, फैमिली कनेक्टिविटी ये नहीं होती है, दैट इज़ मिसिंग ओवर देयर। सो जब आप फार्म पे काम करते हैं, यू वर्क फॉर द फैमिली, यू वर्क विद द फैमिली, एंड फैमिली टुगेदरनेस जो है वो फार्मलैंड पे मिलती है। सो दैट इज़ ऑल स्टूडेंट्स, it ends over here. Joel loved his environment and Joel loved nature. So what people have to do, you have to do the assignment, you have to work on the question answers of the exercise, and this is your weekend assignment. You will submit it to me on Monday, and then I will upload the question answers of the exercise on Monday. Then you people can relate your assignment with that assignment. Thank you very much.